اور پاشا ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں پاشا، ہم آپ کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں پاشا، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے احمد پاشا قادری، آپ کی ہر تکلیف ہماری تکلیف ہوگی، آپ کی ہر مصیبت ہماری مصیبت ہوگی پاشا۔ صرف آپ ایم ایل اے نہیں ہیں مگر مجلس سے جو آپ کا رشتہ ہے پاشا وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر میں اس دنیا سے جاؤں گا تو پاشا آپ مجھے قبر میں اتاریں گے، اگر آپ جائیں گے پاشا تو یہ غلام بھی صاحب کے ساتھ چلے گا۔ جیل میں تھے آپ 2 مہینے بیدر کی جیل میں پاشا تھے۔ سالار ملت کو جب کبھی گرفتار کیا جاتا تو احمد پاشا قادری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے، تو میں اپنے بچپنے میں جب ہم اپنے والد سالار ملت سے ملنے جاتے تو ہم جیل میں دیکھتے کہ احمد پاشا قادری بھی سالار کے ساتھ جیل میں ہے۔ کئی مرتبہ احمد پاشا قادری صاحب کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ رکن بلدیہ بھی تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب اضلاع میں آج اگر مجلس اتحاد المسلمین کا یونٹ بڑا مضبوط ہے تو میں پہلے بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ احمد پاشا قادری صاحب کی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ اس میں مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اس میں مرحوم شیخ محمد اختر صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج تلنگانہ میں ایک طاقتور اپنا موقف رکھتی ہے تو اس میں مرحوم مجلس کے قائدین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، جس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرحوم قائد کے ساتھ سالار ملت کے ساتھ احمد پاشا قادری نے ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا۔ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بہت سفر بھی کیے، تو مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب کو سلام کرتی ہے، اور ہم احمد پاشا قادری صاحب کی مجلس اتحاد المسلمین کی جو خدمات ہیں وہ ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ آج احمد پاشا قادری صاحب یاقوت پورے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احمد پاشا قادری صاحب کے ذریعے سے انہوں نے جو تجربہ سیاست میں حاصل کیا وہ ضرور مجلس اتحاد المسلمین کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد پاشا قادری صاحب نے 2004 میں سالار نے ان کو اس وقت کی حلقہ اسمبلی چار مینار کا رکن اسمبلی کا ٹکٹ دیا، پھر 2009 میں حلقہ اسمبلی چار مینار راجندر نگر ایک اسمبلی حلقہ بنا اور تھوڑا حصہ اس کا مہیشورم میں چلا گیا۔ دوبارہ احمد پاشا قادری صاحب کو چار مینار کا ٹکٹ دیا گیا۔ پھر 2014 میں چار مینار کے رکن اسمبلی کے طور پر منتخب ہوئے۔ پھر 2018 میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی نمائندگی کا اعزاز احمد پاشا قادری صاحب کو آپ نے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سیاسی جلسے میں اسد الدین اویسی کھڑے ہو کر یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً آپ نے ہم کو منتخب کیا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً آپ نے اس جماعت کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اس جماعت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کے اراکین اسمبلی کی قربانی، ان کی محنت اور جستجو بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جناب احمد پاشا قادری صاحب اپنی سیاسی زندگی میں بے نفس ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت انجام دی، اور
माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नजरों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि सालार मिल्लत की क़ियादत की आज भी ज़रूरत है और कल भी रहेगी। अगर आज भी अब अहमद पाशा कादरी से उठाकर पूछ लेंगे कि बताओ पाशा, इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कायद कौन था, तो पाशा की जबान से निकलेगा कि मेरा महबूब कायद सालार मिल्लत था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब का घराना, उनके बड़े भाई, उनके वालिद हजरत कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मजलिस के उस वक्त के सफर के साथी हैं जब मजलिस को कोई जानता नहीं था। तो आज मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ जबान है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने अल्फाज से पाशा कादरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर सकूंगा, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाशा कादरी साहब को सेहतियाब कर दे, उनको शिफा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती रही, मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अहमद पाशा कादरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अहमद पाशा कादरी साहब ने बहुत से अहम और नाजुक वक्तों में मुख्तसर से अल्फाज में मुझे अपनी राय दी। और उस मुश्किल वक्त में उस मसले का हल जब मैं सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट मेरे सामने बैठकर बोलते थे कि इसका ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं ताज्जुब करता था कि मैं इतने दिन से इस मसले पर सोच रहा हूँ और अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट में उस मसले का हल मुझे पेश कर देते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने यकीनन अहमद पाशा कादरी साहब को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाब किया, मगर मेरा भी अखलाकी फरीज़ा है कि बहसीत एक जमात के जिम्मेदार के मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूं। और जब मैं मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे, वापस आए, तो मैं वापस आने के बाद दोनों अहमद पाशा कादरी साहब को और मुमताज़ खान साहब को बुलाकर बैठकर बात करके कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने 2018 में आपसे इस बात को कहा था कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में हमको याकूतपुरा और चार मीनार से नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो कमरे की बात थी, मगर आज अवाम के दरमियान में मैं आपको कह रहा हूं, एक पेशानी पर बल नहीं था, ना मुमताज खान साहब के, ना अहमद पाशा कादरी के। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। और जब दोनों ने ये बात कही, मैं पाशा को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, पाशा मुझे माफ कर दीजिए, ये फैसला मुझे लेना पड़ रहा है, मगर ये जमात के मफाद में ले रहा हूं, क्योंकि मैं बचपने से अहमद पाशा कादरी साहब को देख रहा हूं, उनकी खिदमात को हम देख रहे हैं, उनकी तड़प को, उनकी मेहनत को, उनका बेनफ्स होकर मजलिस के लिए काम करना, जो लोग करीब से देखे हैं, मम्मी साहब भी जानते हैं, बहुत मुश्किलात और मसाइब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह जब तक मुझे इस दुनिया में रखेगा, अल्लाह ऐसे 100,000 अहमद पाशा कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमात अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो एक लंबा वक्त लग जाएगा।
मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाशा के कई रूप है जो आप नहीं जानते। एक रूप पाशा का ये था कि सालार मिल्लत जेल में थे तो अहमद पाशा कादरी साहब सालार के सामने नाते पढ़कर सुनाते थे, और जब सालार नहीं रहे थे तो जेल में जितने मजलिस के लोग थे तो पाशा पुराने हिंदी पिक्चरों के गाने भी कभी कभी सुना देते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का था तो सालार मिल्लत अपनी जीप में रामकृष्णा थिएटर के सामने से जा रहे थे और वहां से पाशा निकले मोटरसाइकिल पर। तो मैंने अपने वालिद से कहा, पाशा जा रहे, पाशा जा रहे। तो मेरे वालिद, पाशा वहां क्या कर रहे? तो पाशा शर्ट पैंट में निकल रहे थे। ये भी पाशा का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि हमारा एमएलए खाली इसमें सब चीज में था हमारा एमएलए, मगर एक और रूप है जो उनका असली रूप है। अहमद पाशा कादरी सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहमद पाशा कादरी पक्का सच्चा आशिक रसूल है। मैं अहमद पाशा कादरी साहब को कई मर्तबा देखा कि जलसों में, नात की महफिलों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती या कोई मुकर्रर अपने बेहतरीन तरीके से अजमत रसूल को बयान करता तो पाशा कादरी की आंख में आंसू आ जाते और पाशा कादरी की कैफियत ये होती कि कांपना शुरू कर देते थे। ये ना सिर्फ सच्चे आशिक रसूल थे बल्कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर के सच्चे गुलाम भी थे। तो मैं पाशा कादरी साहब को सलाम करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इस रिवायत को बनाना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी को टिकट नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे नाराज हैं। हमको नए लोगों को लेकर आगे लाना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि मैं भी नहीं रहूंगा यहां पर, कोई और आएगा मेरी जगह पर, हो सकता है कि इंशाल्लाह मुझसे बेहतर होगा। तो दुनिया में आए हैं तो जाएंगे मेरे भाई। मजलिस ने जिसको जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभाएंगे तो लोग उनको याद रखेंगे, लोग उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग अब मजलिस के जरिए से अवाम की खिदमत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी अवाम की जानिब से और बहैसियत एक मजलिस के एक सिपाही की जानिब से अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और पाशा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है पाशा, हम आपको हरगिज छोड़ने वाले नहीं है पाशा। आप जहां कहीं भी रहेंगे हम आपको तंग करते रहेंगे अहमद पाशा कादरी। आपकी हर तकलीफ हमारी तकलीफ होगी, आपकी हर मुसीबत हमारी मुसीबत होगी पाशा। सिर्फ आप एमएलए नहीं हैं मगर मजलिस से जो आपका रिश्ता है पाशा वो हमेशा रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पाशा आप मुझे खबर में उतारेंगे, अगर आप जाएंगे पाशा तो ये गुलाम भी आपके साथ चलेगा।